अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि वो क्या चाहते हैं और वो बेसिकली उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। और एक जो जॉब के हवाले से या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सक्सेस के हवाले से वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, और उसका नाम है जी इंग्लिश लैंग्वेज। सो रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो सबसे बड़ी खामी होती है, आपकी जो सबसे बड़ी कमी होती है, आपकी जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, वही आपकी कामयाबी होती है। क्योंकि नुकसान आपको उसी चीज़ से हो रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके लिए ज़रूरी ना हो तो वो बार बार आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े और हर जगह पे आपको उसकी नीड ना हो। सो मीन्स इट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड जो आपकी सक्सेस है वो इसके अंदर है। सो जिस दिन आपने इसको सीख लिया, इसको अगर आप पॉजिटिव देखें तो आप नेगेटिव देखें तो आपका एजुकेशन में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर में प्रॉब्लम, सिंपली व्हाई? बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बाहर जाना प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आईएलटीएस में प्रॉब्लम, जॉब करनी है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बट पॉजिटिव साइड इज दिस, इफ यू जस्ट इंप्रूव your English language, your communication, you can get all such things because of English language. You can get very good marks in your education, and you can get a very good job, and you can do work online and lot more things and business and so many things. You can improve your learning, you can improve your business, you can improve your job opportunities. Why? Just because of English language. So it's positive thing, just you have to improve it, and you can change your life, and you can achieve all those things you are missing so far. So how can you improve it? It's a very simple, don't worry about that, because you are already speaking language. You are speaking Urdu, you are speaking Punjabi and so many other languages. If you can speak one language, you can speak a second language too, because both are languages. So what's the difference? Why you are making it so difficult? Why? Because you are following the wrong way. Your approach is wrong. Your approach is wrong. Why? Because you try to speak second language as you learned your first language. No, it's not the way. What's the way? Let me explain to you. There are three things. तीन हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा। The first thing, second and third, आपने क्या करना है और कैसे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। Remember one thing, if you want to speak any language, you need three things. First of all, that is called words. Technically it is called vocabulary, and second, उन words को arrange करके you have to make a sentence, and वो जो order है, arrangement है, that is called grammar. And third thing, when you want to speak it, it is called pronunciation. So sounds. So only three things are there. Whatever you want to say, you want to say मैं English सीखना चाहता हूँ, so first you will select words. मैं, I, सीखना, learn, चाहना, want to, English. Okay, you have selected words. Now you have to arrange in a form, and that is called grammar sentence. And third thing, when you have arranged everything in your mind, now you have to convey that message to your listener. So what you need to do now? You need to pronounce it well, and there is a proper appropriate way of pronunciation and arrangement. So language is the name of one thing, that is called word, and two other things are rules, principles. यानी उस वर्ड्स को किस तरतीब से अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर, और उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। नथिंग इज देयर, आपको कोई चौथी चीज इसमें नहीं मिलेगी। सो हाउ टू इंप्रूव इट? सो यू विल हैव टू स्टडी लिंग्विस्टिक्स, नॉट MA English or any other way, only linguistics. In linguistics there is one paper that is called morphology. Morphology studies words, forms, parts of speech. And second thing, to learn grammar, you will have to study syntax. In syntax, you will have to study structure. So no, I'm not talking about just 12 tenses. I'm talking about at least you should know 40, 50, 60 structure. So if you spend only few days, you can speak single sentence in different 50 or 60 ways without any hurdle. और अगर आपको एक बात, कोई भी बात 50 अंदाज में कहनी आ जाए, लिखनी आ जाए, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, CSS, whatever you want to do, because you can speak, you can write and speak whatever you have in your mind in a correct form. So you will not face any problem. And next thing is called pronunciation. So it's
so easy if you just study English phonology. In English phonology, there are 44 to 50 sounds. You will have to study IPA. English के अंदर 20 vowels हैं according to RP, and 24 जो है आपके consonants हैं. और आप अगर ये 44 साउंड सीख लें तो दुनिया के किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप एडवांस लर्नर डिक्शनरी में खुद कंसल्ट कर सकते हैं. एडवांस लर्नर डिक्शनरी में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, डिफरेंट है. एडवांस लर्नर डिक्शनरी लें, अभी प्ले स्टोर पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें या ऑनलाइन ओपन करें और किसी भी वर्ड को आप वहां लिखें तो सामने उसकी प्रोनाउंसिएशन IPA में इंग्लिश फोनोलॉजी में लिखी होगी. सो आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, आपको बहुत सारी CDs नहीं सुननी, आपको कुछ और नहीं करना. जस्ट यू नीड टू स्टडी 44 to 50 साउंड्स. अगर ये साउंड्स आप सीख लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन का. प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैब, एंड देन कम्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अब ये मटेरियल था, वट एवर यू हैव लर्न सो फार, ये मटेरियल था और इस मटेरियल को यूज करके यू आर टू यूज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग एंड रीडिंग ये बेसिकली ये आप परसीव करते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स कहलाते हैं. आप इनको जितना इंप्रूव करेंगे और ऑथेंटिक लोगों को सुनेंगे और पढ़ेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी. आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, आपके पास डेटा ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपकी कितनी, अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोकल लेवल की बुक्स, गाइड्स और लोकल इन लोगों को फॉलो करते हैं और फिर आप बोलना उनकी तरह चाहते हैं, नेटिव्स की तरह. इट्स नॉट द वे. आपको उन्हीं को फॉलो करना होगा, उन्हीं को सुनना होगा. डिफरेंट आपको नेट पे मिल जाएंगे. BBC 6 मिनट इंग्लिश के नाम से आपको क्लिप्स मिलेंगे छोटे छोटे, इनको आप सुने. आप न्यूज़पेपर को रीड करें जिससे आपको वोकैब, ग्रामर और लिसनिंग से आपको एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और इन चीज़ों का पता चलेगा. एंड देन कम्स हाउ टू प्रोड्यूस इट. अगर आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते इफेक्टिवली तो आप जो कुछ आपके पास है वो यूजलेस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग और राइटिंग आपकी बेहतर होगी. ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी वो जो 3 बातें हैं उस मटेरियल से, और उसके बाद जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे ये 4 स्किल्स आपके डेवलप होंगे. एंड द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कोई बड़ी कमाल चीज़ नहीं है. अंग्रेज़ों के जितने भी जो वेटर्स हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, उन सबको इंग्लिश आती है. बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो डायरेक्टर की पोस्ट पे नहीं बैठे हुए. बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो बड़े सक्सेसफुल नहीं है. सक्सेसफुल होने के लिए खाली इंग्लिश काफ़ी नहीं है. दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यू विल हैव टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. रिमेंबर वन थिंग, इन प्रेजेंटेशन स्किल्स योर बॉडी लैंग्वेज, योर साउंड, योर पिच, योर वॉल्यूम, योर प्रेजेंटेशन टाउन, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. अगर आपने कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे को ऑपरेट करना, उसको कन्विंस करना, उसको कायल करना, ये तब कर सकते हैं जब आपके अंदर ये स्किल खुद है. आप मोटिवेट तब कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस तब कर दे सकते हैं जब आपके अंदर मौजूद है. ये आपके अंदर मौजूद नहीं है, आपकी बॉडी में उसकी झलक नजर नहीं आ रही. यू कैन नॉट कन्विंस अदर. एंड रिमेंबर वन थिंग, योर प्रोडक्ट वैल्यू इज ओनली 10% एंड योर प्रेजेंटेशन वैल्यू इज 90%. आप सारी जिंदगी नॉलेज लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट. आप जो बेच रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट. Whatever the idea do you have, that is product. But how to sell it, how to convince, it depends on your presentation, and you will have to practice it and improve it like an actor. एक एक्टर के पास एक डायलॉग है जो किसी ने लिख कर दिया है, but he produces in a way कि वो he convince others. वो उनको कन्विंस कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी परफॉर्मेंस की वजह से. 2 थिंग्स आर देयर, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस, योर साउंड्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स को आपने कैसे इंप्रूव करना है. सो फॉलो ऑल सच थिंग्स, लिसन नेटिव स्पीकर्स, read a lot and practice a lot after improving 3 basic things which I have told you. I hope it would be really effective and helpful for you. But the most important thing, you will have to select a guide and coach and teacher first of all if you want to improve it properly, because you need environment and teacher. If you have a proper teacher, environment, and you follow all such things, you can produce a result. Thank you very much.